शुरुआत करेंगे हमारे HR पैनल की अबाउट इनिशिएटिव्स, और हम कॉर्पोरेट्स के अंदर हम कैसे नई नई पॉलिसीज और नए नए जनरेशंस को संभाल रहे हैं. सो आई हैव निखिल माथुर सर फ्रॉम नारायणा हॉस्पिटैलिटी. प्लीज बिग राउंड ऑफ applause फॉर हिम. Good to have such a wonderful panel with us. योग गुरु ढाकाराम सर, इनको तो दुबई, US, UK सब जगह जानते हैं, और मतलब सर के साथ बात करना तो एक अलग ही तरह का लेवल है. सोनल उपाध्याय, one of my very old friend at Jaipur, but heading HR from Pratham Software. A huge round of applause for Sonal as well, please. And Sonika Talwar, my recent friend in HR fraternity, but she is doing really good. She shifted from Delhi to Jaipur now, और जयपुर में Dot Square की HR head है. So maybe let's just start to understand. We have IT industry, we have hospitality, and we have yoga sir as well. हम शुरुआत करते हैं वर्क लाइफ बैलेंस से. आई नो कोविड के ऊपर बहुत बातें हो गई, बट आफ्टर कोविड नाउ हाउ इज द लाइफ? हम लोग क्या कर रहे हैं एज एन HR? थोड़ा सा आप कंपनी की स्ट्रेंथ के बारे में बताइएगा. हाउ मेनी एम्प्लॉयज डू यू हैव, एंड ऑल्सो आपकी क्या नई पॉलिसीज है जो आपने कोविड के बाद या तो नई शुरू करी या फिर आपने चेंज करी? We are heading this organization with almost 1,000 people. If I talk about, I mean, he has already said that, you know, in COVID, most of the things changed. Right now, if we talk about the kind of people whom we are working with, we are not only working with the people who are, you know, we are working with Gen Z people, we are working with Alpha people. I mean, when we talk to these people, the kind of balance, earlier when we were working, the kind of mindset people were having was to you know, grow not in that sense that, you know, they were working hard, probably working after hours or so, but then right now, if the kind of generation we are working on right now, they want that work life balance. So in work life balance, they do not want them to be get disturbed on any of the weekends. They do not want to work you know, after work, you know, after office hours or so. But then, you know, dealing with such people, because the managers who are from a different generation and the people who are working right now are from different generation. So making a connect between them, this actually becomes very difficult. So managing in such a way wherein the kind of policies, as Nipun asked that, you know, what kind of policies we have changed. Earlier, the kind of connect that people were having, that was only that, you know, the meetings and everything. But right now we have started with all those sessions, because after COVID we have seen that when people were not having that kind of bonding with each other because they were working remotely, so they were not having that bonding. We were having all those virtual sessions or so. So we realized that, you know, how important it is to have a one-on-one discussion, or probably having an environment wherein the openness should be there. So after COVID, what we have done is that apart from the regular activities what we are doing, we have engaged one HR person with every business unit. So they work as a single point of contact for them, and they actually, the kind of openness, earlier people were not that much open that, you know, they are talking about the problems or so, that okay fine, manager ne kaha hai, and they are staying back. But right now we have given them that platform wherein they can talk about their problems. We listen to them. Generally, I'm not saying that, you know, we go to the managers and tell them that, okay, fine, you cannot do that. But then we actually find out those ways wherein people can actually, you know, the kind of openness wherein they can speak about their problems. They should be vocal about it, and probably we try to give them that way wherein it should be a win-win situation for both the organization as well as for the person as well. Maybe my next question comes up to Sonal that बॉन्डिंग, यू नो, एक एम्प्लॉय एंगेजमेंट एक्टिविटीज होती हैं, यू नो, वो केक कटिंग से बहुत ऊपर हो चुके हैं वो, मतलब बर्थडे सेलिब्रेशन, रंगोली बनाना, यू नो, HRs आर बीन कर्स्ड फॉर इट थ्रू आउट द लाइफ कि बस ये रंगोली बनाने के लिए बैठे हैं ऑफिस में. बट आई थिंक वी हैव ग्रोन टू फ्रॉम, यू नो, ग्रोन फ्रॉम दैट. बहुत दूर जा चुका है HR सिर्फ हायरिंग से या सिर्फ ऐसे सेलिब्रेशन से. तो और क्या ऐसी एक्टिविटीज, यू नो, वेलनेस या वर्क लाइफ की बात करते हैं? बहुत अच्छा लगता है कि हम वेलनेस की बात कर रहे हैं, और जब हम वेलनेस की बात कर रहे हैं तो फिजिकल वेलनेस के साथ अपन मेंटल वेलनेस की भी बात कर रहे हैं, एंड दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. आई बिलोंग टू अ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन प्रथम सॉफ्टवेयर. तो मैं ये बात करना चाहूँगी पहले तो कि कोविड नहीं, कोविड के काफ़ी पहले से प्रथम सॉफ्टवेयर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जानी जाती है जो कल्चर वाइज इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट वी आर हैविंग वॉज ऑलरेडी वेरी फ्लेक्सिबल. और वैसे मेरा थोड़ा पर्सपेक्टिव निपुण ये है,
वर्क लाइफ बैलेंस somehow थोड़ा सा डिफरेंट है कि वर्क इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. वी शुड एंजॉय अवर वर्क. वो तो आपकी लाइफ का पार्ट है. अगर वर्क नहीं रहेगा तो सबसे बड़ा स्ट्रेस है सर. अगर आप पूछ के देख लीजिए, हम आईटी कंपनीज हैं, अगर एक पर्सन बेंच पे आके 15 दिन भी बैठता है तो उसको स्ट्रेस होने लगता है, आप कितना भी अच्छा एनवायरनमेंट दे दें उसको. तो वर्क इज समथिंग वी शुड वर्शिप. इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ. वी शुड एंजॉय इट. थॉर हैप्पीनेस. And as an organization, what we can do, we can make our workplace a happier place. तो वर्क होगा, वर्क रिलेटेड स्ट्रेस भी होगा. ये मान के चलिए, अगर हम ये सोचते स्ट्रेस नहीं होगा तो यू आर इन अनदर वर्ल्ड एंड यू शुड एंजॉय दैट स्ट्रेस एक्चुअली. तो व्हाट वी कैन डू, आपने बहुत सही कहा कि आज की डेट में HR जो ऑफकोर्स पहले अभी भी कई बार जोक्स आ जाते हैं व्हाट्सएप वगैरह में, रंगोली एंड ऑल दिस. तो मुझे नहीं याद मैंने ऐसे कंटेस्ट कभी कराए हो खुद ने. What we do in our organization, HR is just a facilitator. The people do it, and the people do it as per their choice. So we are having a hiking club, we are having a cycling club, we do have a book reading club. ये हमने नहीं करे, HR ने नहीं किए, एम्प्लॉय चॉइस थी. कुछ लोग आगे बढ़े, उन्होंने ग्रुप्स बनाए, उन्हें आगे बढ़ाया. What HR and organization has done, we just facilitate them. आपको जो करना है आप करिए. टॉकिंग अबाउट द सेशन एंड ढाकाराम सर के साथ बात करेंगे. सर ने सुबह खूब हंसाया है. सर आपसे बिल्कुल चाहूँगा, सर आपका क्या अनुभव रहा है कॉर्पोरेट्स के अंदर स्ट्रेस रिलीजिंग के ऊपर, कि हाउ टू क्रिएट अ गुड कल्चर विच टेक्स केयर ऑफ मेंटल वेलनेस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन विच लीड्स टू वर्क लाइफ बैलेंस. जहाँ स्ट्रेस की बात होती है तो अभी आपने कहा कि बहुत सारे गेम्स या उनके हिसाब से हम लोगों को मोटिवेट करते हैं. तो आई फील कि जो मेरा अपना अनुभव है, वी कांट चेंज एनीबॉडी एंड यू चेंज एवरीवन. जब आप बोलते हैं मैं मुस्कुराता हूँ, तो आई फील कि एंड में हम जो भी करते हैं, वट एवर वी आर डूइंग, वी वांट टू हैप्पीनेस, एंड दिस हैप्पीनेस नोबडी कैन टेक एंड नोबडी कैन कीप. जब हम कॉर्पोरेट में काम करते हैं तो आपका ये सोचना है कि मेरे पास ऑप्शंस क्या है. या तो आप खुशी से काम करो या रोते रोते काम करो. आप खुशी से काम करेंगे तो जो आपका काम 10 घंटे का है, मैं 100% लिख कर बोल सकता हूँ आपका 6-7 घंटे में हो जाएगा. और किसी काम को आप हंसते खेलते करेंगे, जो काम 10 घंटे का है वो आप 6-7 घंटे में कर सकते हैं. जब दुखी मन से कोई काम करेंगे, वो काम पता नहीं होगा कि नहीं होगा, स्ट्रेस भी होगा कि नहीं होगा, और दिस इज नॉट श्योरिटी. तो मेरा ये क्यों होता है कि हम काम करते हैं तो हमेशा खुश क्यों रहना है, कि हम सब सोचते हैं ऐसा करने के बाद मौज करेंगे. क्या सोचते हैं? ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये काम पूरा हो जाएगा, वो काम पूरा हो जाएगा, ऐसा बिजनेस खोलूंगा, फिर मौज करेंगे. तो अभी से मौज करो ना. आपको किसने मना किया है? अगर आप स्माइल देते हैं, अगर आप ऑफिस में आप एंटर करें कॉर्पोरेट में, आप स्माइल के साथ अगर आप बॉस से बात करते हैं तो उनका अपने आप टेम्परेचर बढ़ जाता है. मतलब प्रमोशन हो या ना हो, तुम्हारी स्माइल तो तुम्हारे साथ है. प्रमोशन से इस हैप्पीनेस का कोई वो नहीं है. तो मैं सभी को बोलता हूँ, अगर आप कहीं सेवा दे रहे हैं, सेवा मीन्स आप वर्क कर रहे हैं कॉर्पोरेट में, इसलिए मेरा फील्ड है आनंद फॉर कॉर्पोरेट, मैं बाद में बात करूँगा, तो इसलिए मैं हमेशा मुस्कुराता रहता हूँ. कहता हूँ कि आप मुस्कुराएंगे तो काम अच्छा होगा, नहीं भी होगा तो मैं तो मस्त हूँ. और मुस्कुराहट किससे? जब आप योगा करते हैं. मैं योगा से बात करता हूँ. दुनिया में ऐसा कोई फील्ड नहीं है, मुझे बता दीजिएगा. अभी बात हुआ था, आपने कहा डिफरेंट हम फिजिकल करते हैं. व्हाट आई डू फॉर माइंड, मेंटल लेवल. आप फिजिकली तो स्वस्थ दिख रहे हैं, मन के लिए क्या करेंगे आप? दुनिया में कोई सिस्टम नहीं है. क्यों? कई लोग हम मन के पीछे भाग रहे हैं, कहीं तन के पीछे भाग रहे हैं, कहीं स्पिरिट के पीछे भाग रहे हैं. योग में तीनों का संगम है. आप फिजिकल के साथ अगर आप अपने ऑफिस में या कॉर्पोरेट में आप अगर मन के लिए प्राणायाम ऐड कर दें, ब्रीदिंग टेक्निक्स ऐड कर दें, तो कहते हैं ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा. स्ट्रेस का खोज क्या है? अगर हमारा मन शांत है तो श्वास कैसे चलेगा? लंबा और गहरा. और लंबा और गहरा श्वास चलेगा तो मन कैसा होगा? एकदम पीसफुल. तो आप कुछ भी एक्टिविटीज कॉर्पोरेट में कराते हैं, उसका अगर आप इफ यू ऐड द प्राणायाम, मैं कहता हूँ प्राणायाम नहीं छोड़ो, आप 10 मिनट अगर डीप ब्रीथिंग भी करो, उसके लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, तो आपका मन भी चेंज होता है. और स्माइल तो होता ही है, क्योंकि साधना से स्माइल आती है. थैंक यू सर एक क्वेश्चन लेना चाहूँगा यहीं पे आपसे. कई बार ये कहा जाता है कि ना यार, माइंड हमारा ना हमारे कंट्रोल में नहीं होता. नो, समबडी एट टाइम्स पीपल से माइंड इज अ मंकी, और एंड देन इट फ्लिकर्स अराउंड अक्रॉस द ओशन, अक्रॉस द नेशंस.
कुछ लोग उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, आपका क्या कहना है इसके ऊपर सर? माइंड इज मंकी बट वी आर नॉट मंकी। समझ Very रहे? nice. मन तो बंदर है, हम बंदर हैं क्या? Who are a controller? You are a controller. वी आर सेल। When you do practice, practice comes a आपको मन को, मंकी को मन बना देता है। तो हम राजा हैं कि मन राजा है? तो मन को कंट्रोल करने के लिए श्वास है। अगर आप श्वास को अगर फोकस करने लगेंगे, तो मैं हमेशा बोलता हूं, बुद्ध से अगर भगवान बने, एक बुद्ध कौन थे? योद्धा थे, बहुत योद्धा थे। राजा से अगर भगवान बने बिकॉज ऑफ ध्यान, तो अगर आप ध्यान करने लग जाएंगे, श्वास को आप कंट्रोल कर लेंगे, तो मन भी आपका कंट्रोल हो जाएगा, भागेगा नहीं। मूविंग टू निखिल, निखिल कम्स फ्रॉम टिपिकल हॉस्पिटैलिटी एंड नारायणा के साथ हमारा एक अलग ही रिश्ता है हॉस्पिटल के साथ और बहुत सपोर्ट मिलता है। एंड नोइंग निखिल, वहाँ पे अलग अलग आवर्स में शिफ्ट चलती रहती हैं, हर तरह का स्टाफ है, फ्रंट एंड बैक एंड, इमरजेंसीज, ओपीडीज, बहुत चीज़ें होती हैं। तो व्हाट इज़ योर फोकस एज एन HR? When people are working to shift, see 24 hours हॉस्पिटल काम करता है, और इमरजेंसी के समय जब आदमी इमरजेंसी में आता है या डॉक्टर से मिलने आता है, तो खुशी खुशी तो नहीं आता है, टेंशन में आता है। अब बड़ा बैलेंस बना के रखना पड़ता है, लोगों को सिखाना पड़ता है कि किस तरह से वो लोग बात करें, ताकि it becomes very easy for a person to, one, understand what is the challenges. Secondly is how we as an organization is going to help him to get better. And third, obviously the most important thing is to ensure that the people who are working with us are also engaged. And engagement हमारा दो ही perspective है। पहला, बहुत सारा communication, verbal, physical, etc. And secondly, fun. जहाँ पे भी इस समय मिले, थोड़ा सा फन का एंजॉय कर लीजिए, स्ट्रेस रिलीज हो जाता है, टेंशन खत्म हो जाती है, आगे बढ़ने का मजा मिलता है। जेन जीज की डिमांड, जेन जीज का एक एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम कॉर्पोरेट्स, उनके लेवल से सोचे तो वर्क लाइफ बैलेंस एकदम ओपन एंडेड हो जाता है कि बस घर बैठे ही काम करेंगे, अब हम वही वर्क लाइफ बैलेंस है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो हाउ आर वी रेडी टू मैनेज दैट कि बॉस, आफ्टर 5 years when Gen Z's population will increase? So maybe Sonal, starting from you, how would you want to, take this question, and how are we ready as an HR? कहाँ जाएंगे अभी हम आगे? जेन ज़ी का जो पर्सपेक्टिव है बहुत डिफरेंट है। दे आर मोर ओपन। वो जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो बोलेंगे आपसे, राइट? दे आर मोर वोकल, दे कैन डिमांड थिंग्स, दे नो व्हाट टू सेलेक्ट, दे आर सेलेक्टिव अबाउट देयर जॉब्स ऑल्सो। तो वो चीज़ नहीं है कि हमें बड़े ब्रांड के साथ जाना है, दे आर हैप्पी विद द स्टार्टअप्स ऑल्सो। सो दे आर लुकिंग फॉर अ मीनिंगफुल जॉब, मीनिंगफुल वर्क। सबसे बड़ी बात जेन ज़ी की है कि मतलब आई रियली अप्रिशिएट देम फॉर दिस थिंग। पहले ये होता था कि ओके क्या जॉब मिल जाए अपने को, दैट्स गुड, अच्छा इस कंपनी के साथ मिलेगी, दैट्स वेरी गुड। बट नाउ जेन ज़ी इज़ वेरी सेलेक्टिव, दे वांट अ मीनिंगफुल वर्क and that is the biggest engagement for them. Then they want very open environment, open culture, flexibility चाहिए उन्हें कि जब काम है मैं काम कर लूँगा, मैं पूरी रात जग के काम कर लूँगा, बट जब नहीं है तो मुझे इस सीट पे नहीं बैठना। Very well, correct. So it is, they are very clear about it कि आप ज़बरदस्ती में आप एक ऑफिस की सीट से बांध के नहीं रख सकते उन्हें। एंड जो पहले के उसमें होता था कि मैं इतनी देर तक काम करता हूँ, 10 घंटे ऑफिस में, तो वो उनका थॉट प्रोसेस है ही नहीं। They can work for an hour which is very productive, and then they want कि उनको सुना जाए, they want that open ears, they want their ideas should be accepted, they want an organization which is socially responsible organization भी वो चाहेंगे। कहीं ना कहीं वो sustainability को भी देखते हैं कि हमारा organization कितना pro towards yes, उनकी क्या वैल्यू सिस्टम है, मेरे कितने मैच कर रहे हैं। दे आर रियली सेलेक्टिव। तो आज उनको ये नहीं है कि भैया मेरी जॉब इतनी इंपॉर्टेंट है, मैं कुछ भी कर लूँगा। सो दैट इज़ द चेंज इन द थॉट प्रोसेस, एंड आई थिंक ऑर्गेनाइजेशन आर अडेप्टिंग टू दैट थॉट प्रोसेस। तो आप देखिए आज बड़ा ओपन एनवायरनमेंट चल रहा है। आज ऐसा नहीं है कि पॉलिसीज़ में वो लोग नहीं बोल सकते, दे कैन कम फॉरवर्ड एंड टॉक अबाउट द पॉलिसीज, दिस इज, आई एम नॉट गोइंग टू फॉलो दिस, कैन वी चेंज इट। They are looking for more engagement, involvement in those things also. Engagement when it comes to activities and events, वो एक अलग चीज़ है। अब वो partners हैं organization. They want that kind of partnership with the organization. I think Generation Z is coming up with really some good
things which will help them in their mental well-being also. They're very clear about that. I think I'm moving to Sonika. I think you have some point, please. So Salesforce actually runs such initiatives wherein the employees actually get a point because they actually engage them in such activities, the social activities, like the solar power thing and all that. How much green, how much emission is going on and how much the organization has saved. What are the initiatives that are being taken by the organization to save energy or moreover, I mean the cleanliness thing. What kind of, and there is one more drive that they have done, that is on the taking care of those people, those poor people there on the road that they are not actually getting fed or so. So those initiatives, how many organizations have taken? So I've seen those people who are actually coming up to that level wherein they actually want to help the society as well. They want to help the organization as well. So it is not only getting the points for the organization, because the organization gets certain points for reaching up to that level. In case if they have done that particular activity, they'll be getting some sort of points and they actually become a premier partner for all those product companies. अपन चलते हैं सर के पास और I think I'll go round about across Sir, Nikhil, then both of you. Top 2 tips from your side about work-life balance, personally, professionally, whatever it is. Sir, पहले आप शुरू करिए. Don't compromise your happiness anyhow, any condition. And happiness will come when you do yoga, जो मैं समझता हूँ, जो physically, mentally and spiritually. अभी हमारा physically और mentally का बात हुआ था, spiritually के लिए meditation. तो मैं सभी को कहूँगा, काम कोई भी करो, अपना समझ के करो. जब हम कुछ भी कार्य करते हैं कॉर्पोरेट में और हमने सोचा कि आई एम डूइंग वर्क, नौकरी कर रहा हूँ, तो आपका काम स्टेटस लेवल डिफरेंट होता है. तो आप कभी भी कुछ भी करो, अपना समझ के, मेरा है बोल के करेंगे तो वो ग्रो अच्छा होगा. तो ऑलवेज थिंक इज माई वर्क, नॉट ऑफिस वर्क. फर्स्ट. सेकेंड, देखिए आप लोग जब खेल खेलते हैं, जब हम कुछ भी गेम्स खेलते हैं, एनर्जी खत्म होती है या आती है? I think it depends on टेल मी. कुछ भी हम गेम्स खेलते हैं तो एनर्जी आती है या जाती है? कैलोरी जाती है. कैलोरी जाती है, एनर्जी आती है. एनर्जी क्यों आती है? बाकी तो कैलोरी जा रही है ना. आपको थकना चाहिए, आप थकते नहीं है, क्यों? यू आर प्लेइंग विद गेम. More passion. तो जस्ट डू वर्क लाइक अ प्ले. जैसे बच्चा खेलता है, दिन भर खेलता रहता, थकता नहीं, क्यों? उसको एंजॉय, दे लिव इन अ प्रेजेंट. तो अपना जो काम है बच्चे की तरह करिए, खेलते कूदते रहिए. अगर आप खेलते कूदते करेंगे तो काम बहुत बढ़िया होगा, और रोते रोते करेंगे तो नहीं. तो सभी से कहना चाहूँगा, आप कुछ भी करते हैं खेलते कूदते करें, और फिजिकली फिट रखने के लिए 1 से सवा घंटा शरीर को जरूर दें. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. Top 2 tips from your side about work-life balance. सबसे पहले आई थिंक सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू वन इज हैव द राइट माइंडसेट. राइट सेटमेंट्स के लिए मेडिटेशन, जो सर बात कर रहे थे, इज द बेस लाइन. क्योंकि जितना माइंडसेट सही होगा उतना काम जल्दी होगा और उतनी जल्दी घर जाओगे. दूसरा, देयर हैज टू बी मोटिवेशन एट होम. So one is love your job. So if your job is not interesting to you, probably you have to see where your love and job exist actually. So adopt that. That can be the biggest, I think. वहीं से आपका balance होगा. And invest in your learnings. This is also very important, which we missed in the session, but this is what Gen Z is also looking. Yes, they invest are. in the learnings, and probably these are I the think two the corporates things. are doing a lot of funding for diplomas and courses for their upcoming Yes, Gen yes. Z. So and learnings then can be Gen anywhere Z. with the certification, without the certification. But if the organization is investing on the learnings, definitely this particularly is Gen Z is looking for that. Sonika, top 2 tips. Top 2 tips, I think that everybody has covered everything. It is only that, when I see people, when I talk to people, when I actually, they're every day when you talk to people, it is not only that, we are sitting at a chair wherein we actually interact with people. Everybody has a very different mindset. So for everybody, motivation is different. For everybody, the kind of, for somebody's work-life balance is that, maintaining a particular, the kind of lifestyle they are maintaining or so. I think that, in investing in yourself, be it physically, be it mentally, be it or at a professional level, once you start investing in yourself, once you start finding that purpose in yourself, the balance automatically comes in. So this is all from my side. Okay, that's great. That's great. Thank you so much. So we'll just take a couple of questions from the audience, and I see few raise hands. नेगेटिव एनवायरनमेंट को कैसे लोग दूर भगाएं और पॉजिटिविटी को अडॉप्ट करें? देखिए, रसगुल्ला
हम बोले बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है, बहुत स्पंजी है, सुडानी का है, टेस्ट आ जाएगा? नहीं, क्या करना पड़ेगा? खुद को खा के देखना। तो खाने के लिए साधना करना पड़ता है। इफ़ यू कम विथ मी विद इन 1 आवर फील अ डिफरेंसेस। तो करने से होगा, बातों से नहीं होगा। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करें। जो इस तरह से लोग हैं, मैं कहता हूँ दूसरों की बात मत करो। योग भी बोलता है कॉन्सेंट्रेट योर सेल्फ। आप अपनी बात करें और आप करके देखें। सुरेश भाई साहब को मालूम है, तो करने से ही होगा। डू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, दैट्स इम्पॉर्टेंट। My question is straight to Nikhil. I love your romance with Gen Z, which I will talk to you later. But let me ask this straight question because that's very relevant to the industry today. You said that in hospitals, when you deal with sad people, obviously you'll have to deal with sad people. But how you actually re-energize the staff? You say that, whenever you find time, you re-energize with small activity. What are those things that, can you cite an example or two so that, somebody can take a benefit out of it? Okay, sir, I'll just quickly talk about couple of things which we do. Like we have a training program which we just done for 3 days, where we're talking about patient connect and we care. We have small, हालांकि HR का बोलेंगे यार पॉटलक लंच कराते हो, खाना साथ में खिलाते हो, वो सारी करवाते हैं. बट देन दीज आर द थिंग्स विच वी कंटिन्यूसली डू. वी डू अ लॉट ऑफ लिटिल स्मॉल एक्टिविटीज ऑफ R&R विद आर नर्सिंग, बिकॉज वो सबसे ज़्यादा टेंशन वाले लोग होते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स तो बीच में ब्रेक लेकर के बैठ जाते हैं. बट देन नर्सिंग आर ऑलवेज इन चांस. दैट्स वी डू. We do celebrate their days, and we do a lot of small activities on the floor with them, maybe 5 minutes, 10 minutes, a little fun, so that जो monotonous work चल रहा है उनका patient care के ऊपर, वो break हो जाए. Because till the time वो break नहीं होगा, वो अगर आप 2 हफ्ते continuously उन patient के साथ में बैठे रहेंगे और वही काम करते रहेंगे ना, वो it's surrounded by that. So depression में धीरे धीरे आ जाते हैं. There are a lot of people who goes into that. So in fact company ने online सेशंस भी करवाते हैं. हमारे पास में एम्बर कनेक्ट है जो कि लोगों को एंगेज करता है और लोगों से क्वेश्चंस पूछता रहता है, ताकि आइडेंटिफाई हो कि कौन किस लेवल पे जा रहा है. सो एंड देन वी टॉक टू देम एंड हेल्प देम टू गेट बैक टू नॉर्मल. Okay, I hope that was the answer which can satisfy sir. So, okay, I see one last question, please. So yeah. Yes. Question like, I am coming from a manufacturing company. We have 2,400 employees working with us. So how can I take this initiative of well-being, mental well-being and physical well-being into the action, like wherein every moment is count, like machine breakdown is countable and the employees man-hour loss is countable. So how can I take this initiative into the action? I can just give a very simple example. Make it a daily practice. एक दिन से कुछ नहीं होगा. योगा दिन के दिन योगा कराना, it's not a practice. Till the time you get into the practice. क्या सही बोला सर मैंने? आप किसी भी चीज़ को करते हैं, एक छोटा सा चोट भी लगता है, हील होने में कितना समय लगता है? 10 से 15 दिन. हम सोचते हैं ये एक सेशन में सब कुछ हो जाए. इट्स नॉट पॉसिबल. आपको टेस्ट मिल जाएगा. अगर आप 1 घंटा अभी हमारे साथ बैठे होंगे, हमारी बातें सुने होंगे, अच्छा लगा होगा. अच्छा लगने से नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा. और आपने कहा कि फिजिकली मेंटली, तो फिजिकली के लिए कुछ भी वर्कआउट, मैं कहता हूँ कुछ भी वर्कआउट कीजिए. हाथ को ऐसा हिला लीजिए, पर हिलाइए तो सही. हम बैठे बैठे करें, इज नॉट पॉसिबल. मन को अच्छा रखना है, मैं कहता हूँ प्राणायाम की बात छोड़ दीजिए. आप नहीं जानते यू कैन टेक डीप ब्रीदिंग और नॉट. You can try just 1 minute, sit straight. देखिए आप अभी कैसे बैठे हैं आप लोग, ऐसा बैठा है ना. ऐसा बैठने से क्या होता है? लंग्स कंप्रेस है. देखो तुम्हारा लंग्स कंप्रेस है, तो क्या होगा? शॉर्ट ब्रेथ होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? शॉर्ट ब्रेथ तो होगा. तो आप अगर एक्टिव रहना है लाइफ में, तो ब्रेथ लॉन्ग होना चाहिए. हम कहते हैं प्राण ऊर्जा, प्राण शक्ति. वेयर्स प्राण कहाँ है? आपकी ब्रेथ में है. आपका बैठने का सिटिंग है, आप ऐसा बैठा है, कंप्रेशन होता है. तो आप सीधा बैठिए, आप देखिए क्या होता है. रोल योर शोल्डर्स, चेस्ट ब्रॉड होता है ना. तो अगर आपका ब्रेथ डीप होगा तो माइंड एक्टिव हो जाएगा. जो हम बैठते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, स्पेशली कॉर्पोरेट जगत में, वो बैठे बैठे कमर में दर्द होता है. क्यों? दे आर सिटिंग रॉन्ग पोस्चर. कॉर्पोरेट में वो बैठते हैं, गर्दन ऐसा दिन भर होता है, नेक में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस. क्यों? ऐसा छोटा छोटा टिप्स है. टुडे डोंट हैव टाइम. आप 1 मिनट करें, आपको पता चलता हाँ इस ओपन दिस वन. मन विचलित है,
मन पिछले क्या करना है, ब्रीथिंग टेक्निक्स करनी है, कुछ नहीं, डीप ब्रीथिंग, सामने घड़ी रख लीजिए, मोबाइल रख लीजिए, 5 सेकंड लिया, 5 सेकंड छोड़ा, क्या जाता है, सब चीज़ के लिए टाइम है। जहाँ हेल्थ का बात आता है, अभी राहुल देव जी मैं सुना नहीं हूँ, मैंने थोड़ा सा कहा था, वो भी हर कोई हेल्थ की बात करता है, हम करना नहीं चाहते, सुनना चाहते हैं, सुनने से फायदा नहीं होता, तो यू शुड डू, आप करें। और कॉर्पोरेट में तो मैं कहता हूँ बहुत ज़रूरी है, मेरा आनंदम फॉर कॉर्पोरेट, अगर आपके वर्कर आनंद में रह के काम करेंगे तो काम की कैपेसिटी बढ़ेगी।